Good evening, everyone. As we all know that today UPSC Civil Service Mains 2025 has begun, and the first paper, that is essay paper, is in front of us. A very interesting paper. To me, it appears a very interesting paper, essay paper, and this year also the essay paper is very interesting. So let us quickly try to analyze the trend that UPSC is following in this very first paper, that is our essay paper, and we'll quickly go through the various questions that have been asked, and in detail each and every question, all the 8 topics, we would be discussing it later. After a few days it will be coming in front of you, but today we will be doing an overall analysis of the essay paper, because a lot of students are calling up and they are saying बहुत अच्छा है, बहुत आसान है. Some are saying mediocre सा question paper है. Some are saying सारा philosophical आ गया, difficult है. So let us try to understand, analyze the trend that we have witnessed this year. As every year, what we have seen is, like for the past few years, UPSC is making this paper very interesting. Interesting in the sense because it is now asking students to come out or come up with their own original thought process. They are checking your thought process, and in this way, every year the difficulty level they are enhancing in a way. They are asking you simple questions, but they are asking you very interesting questions. So if you analyze the question paper, first let us just read out all the 8 questions, and then we will try to understand or analyze what kind of trend that is going on right now. First question is the very first question is सत्य कोई रंग नहीं जानता है. That is truth knows no color. है ना, सत्य कोई रंग नहीं जानता है. Truth knows no color. Second is बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्चतम कला है. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. The third one is विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है. है ना, thought finds a world and creates one also. And number 4 is सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं. Best lessons are learned through bitter experiences. So these are the 4 questions of section A, and then we have 4 questions in section B. Fifth question is मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है. Muddy water is best cleared by leaving it alone. And then 6th one is वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते. The years teach much which the days never know. And I would like to tell you here is that this is a direct question which has come from our essay probables which we give after our test series. है ना, हर साल हम essay probables देते हैं बच्चों को जब हमारा test series खत्म हो जाता है. तो this is a direct question which we have given in our essay probables for 2025. The years teach much which the days never know. So it's a direct question from there. And then जीवन को एक 7th क्वेश्चन, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में. It is best to see life as a journey, not as a destination. And last question is संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है. Contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. Now, when you look at all these essays, and the trend is that after a period of, you can say 3-4 years, UPSC has come up with a question paper where we do not have any theme-based questions. है ना, नहीं तो पहले क्या होता था, कोई एक सेक्शन होता था जहाँ कुछ इकोनॉमी पूछ लिया, जेंडर के ऊपर पूछ लिया, सोशल जस्टिस के ऊपर पूछ लिया. है ना, दिस पेपर अपीयर्स टू मी समवट सिमिलर टू व्हाट वी हैव गॉट इन 2021, जहाँ पे मोर और लेस फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आए थे. तो इस साल के भी अगर आप 8 क्वेश्चंस को देखोगे, है ना, सो दिस इज आफ्टर अ गैप ऑफ से 4-5 years, अगेन अ फुल फिलोसफिकल टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड. तो ये एक
ट्रेंड में चेंज है, बिकॉज पिछले 2-3 सालों से आप देखोगे दे वर आस्किंग टॉपिक्स बाय मर्जिंग द इश्यूज ऑल्सो, जैसे फॉरेस्ट और इकोनॉमी को कहीं मिला दिया, कहीं पे उन्होंने वाटर डिस्प्यूट्स पे पूछ लिया, कहीं पे उन्होंने जो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स पे पूछ लिया, कहीं पे जेंडर के ऊपर पूछ लिया, कहीं पे सोशल मीडिया में फोमो वाला कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर पूछ लिया. बट दिस टाइम इट इज प्योरली फिलोसफिकल टॉपिक. ऑल द टॉपिक्स आर फिलोसफिकल टॉपिक. एंड एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऑल द फिलोसफीज इफ यू ऑब्जर्व, है ना, फिलोसफी जो है दे आर अराउंड लाइफ, है ना, लाइफ को जो है मीनिंगफुल बनाने की फिलोसफीज है ना. ऐसा भी नहीं है कि कुछ अलग अलग फिलोसफी के ऊपर पूछ रहे हैं. सो दे आर आस्किंग यू और दे हैव गिवन यू आइडियाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड लाइफ, है ना. जैसे ट्रूथफुलनेस के ऊपर है, पहला क्वेश्चन इज अबाउट ट्रूथफुलनेस. दूसरा जो है आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, है ना. ये विदाउट फाइटिंग जो है ये आपकी नॉन वायलेंस, अहिंसा की फिलॉसफी के अराउंड है. उसी तरह कंटेंटमेंट के अराउंड है. मडी वाटर जो है पेशेंस के अराउंड है. आपका लाइफ जो है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है उसके अराउंड है. आप आसपास से क्या सीख रहे हो, है ना, उसके अराउंड है. आपको जो बैड सर्कमस्टांसेस या डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है उसमें से बेस्ट आप क्या पिकअप कर रहे हो, है ना, उसके अराउंड है. तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर ओवरऑल अराउंड द लाइफ लेसन्स और द वर्च्यूज ऑफ लाइफ. एंड अगर आप देखोगे जैसे ये वाला आपका टॉपिक है ना, the year teach much which the days never know. It is about continuous learning. और इसी तरह का एक टॉपिक जो है continuous learning का टॉपिक, though it was from education perspective, it was asked in 2023 where they have asked question, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. है तो continuous learning के ऊपर है. और यहाँ पे भी it is talking about life जो है वो continuous learning है, life is a journey. And another interesting thing you will see here is कि आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट जो है कई बार बहुत सिमिलर सा लगेगा, बिकॉज थीम्स जो हैं आपके वर्च्यूज ऑफ लाइफ है. और वर्च्यूज ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं यू विल सी दैट कि वो लगभग सिमिलर सी बातें करती हैं, है ना. तो बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया कि मैम कंटेंट जो है काफ़ी सिमिलर हो रहा है दोनों में. हाँ, तो बहुत सारे टॉपिक्स भी आप देखोगे कि वैसा लग रहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं. तो one thing we could make out from this paper is that UPSC is not giving you lot of options, है ना. बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है ना. ऐसा नहीं है कि चलो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लिख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिख लिया, या विमेन पे लिख लिया, या इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे लिख लिया, इकोनॉमिक्स पे लिख लिया. उन्होंने आपको फिलोसफिकल दिया, लाइफ की फिलोसफीज जो है बिल्कुल सिंपल फिलोसफीज है उसके अराउंड ही लिखना है. और काफ़ी मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ लाइक यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड थिंग इज़ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बहुत आसान पेपर है ना. ऑफ कोर्स क्योंकि ये इतना आसान इसलिए लग रहा है बिकॉज ये हमारे आसपास की लाइफ की फिलोसफीज हैं. एंड वट एवर वी हैव प्रिपेयर्ड इन दिस होल जर्नी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, है ना, चाहे हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, चाहे हमने सोसाइटी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, है ना, एनवायरनमेंट पढ़ा, उन सबको कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स में आराम से डाला जा सकता है. तो सबको लग रहा है कि आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वी कैन जस्टिफाई दीज स्टेटमेंट्स. तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है, टॉपिक्स लग रहे हैं सबको, और पेपर भी ईजी लग रहा है. But one thing here is when paper is easy, as we all know that competition is tough. अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो होगा, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है they will be bombarding their essays with lot of examples, lot of facts, कि जैसे ट्रूथ हैज़ नो कलर, कई एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, लाइफ जो है कंटिन्यूस जर्नी है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे. बट इट इज़ नॉट अबाउट ओनली गिविंग एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी's intention might be behind giving these kind of topics. See, they are not giving you very specific subject topics, they are not asking you about the facts,
है ना, और फैक्ट्स अगर पूछ भी रहे हैं तो दे आर आस्किंग यू और दे वांट टू सी द प्रिज्म थ्रू विच you are looking at these facts. They are trying to understand the perspective of a would-be civil servant. तो जिन लोगों ने सिर्फ examples and facts and figures से इनको justify किया है, तो I think they might not be getting very good scores, and the people who have given the examples, but they have mainly analyzed the perspective behind that. ठीक है, तो वहां पे एक डिफरेंशिएटर क्रिएट होगा इस टाइप के एसेज में, बिकॉज फैक्ट से तो हर कोई जस्टिफाई कर देगा, सब्सटैंशिएट कर देगा, बट जो पर्सपेक्टिव है, जो आपकी लेंस है जिसके थ्रू आप इन फैक्ट्स को देख रहे हो, उसको आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आस्क मी, पेपर इज ईजी. So that's why competition would be tough. So let us look at the marks, है ना, marks आ जाएंगे 2-3 महीने के बाद. So इस टाइप के जो papers है, interesting है, easy है, but you have to be very creative, very original, है ना, आपका अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए, रादर देन पुटिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ अलग अलग थिंकर्स, फिलोसोफर्स, है ना, उनके थॉट नहीं, आप अपने लिखोगे, जितनी ओरिजिनलिटी होगी उतना बेटर आपको जो है, आई थिंक यू विल बी स्कोरिंग इन दीज काइंड ऑफ पेपर्स. नाउ if you look at questions, they are very open ended, है ना, open ended है, कहीं किसी का नाम नहीं दिया है, जो यूपीएससी देता भी नहीं है. These are very open ended. These are the questions which are based on philosophies, questions which are based on wisdom. तो आपकी wisdom इसको कैसे perceive करती है, that should be properly reflected in these topics. ठीक है, तो overall if you see, if you sum it up in like 1 or 2 lines, so this time all philosophical questions, no one particular section for philosophy, rather all the 8 questions are philosophical. Some are saying कि war वाला theme वाला है ना, कई students बोल रहे थे war वाला theme वाला आ गया, but if you read, it's not about the word war, it is about what is the essence, है ना, what is the wisdom behind this line. So the wisdom behind this line is the philosophy of non-violence, है ना, तो ये भी एक philosophical ऐसे आप मान सकते हो, और कोई भी ऐसे कई पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है ना, तो ये आपके ऊपर है, आपने किस पर्सपेक्टिव से लिखा है. नाउ लेट अस क्विकली go through all the 8 questions. Again I am repeating, quickly go through 8 questions because इनका डिटेल एनालिसिस हम कुछ दिन के अंदर करेंगे, है ना, अभी नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, तब तक आप भी इस पे सोचो, आप भी अपना जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कंटेंट बनाओ, और फिर हम बाद में एनालिसिस करेंगे और फिर हम एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, है ना, तो दैट विल बी, आई थिंक इट विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रूथ नोज नो कलर. सत्य कोई रंग नहीं जानता है ना. सो this topic is basically about truthfulness, है ना. It is talking about, if you look at this topic, this is talking about that the truth is universal, है ना. Truth is universal. Truth is like a white light, है ना. व्हाइट लाइट के अंदर जो है आप देखोगे स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, बट ओवरऑल आपको लाइट व्हाइट दिखती है. तो उसी तरह ट्रूथ को जो है हर कोई अपने अपने एंगल से देखता है, अपने परसेप्शन से देखता है, हर किसी का अपना परसेप्शन हो सकता है ना. हर कोई इन द सेंस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन सी समथिंग एज अ ट्रूथ विच अनदर कम्युनिटी वुड डिनाई, है ना. कोई किसी कम्युनिटी का है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्लोबल कम्युनिटी, कोई ग्लोबल नॉर्थ है, कोई ग्लोबल साउथ है, तो हर कोई अपने हिसाब से ट्रूथ को देखता है ना. बट ट्रूथ जो है वो किसी कलर को नहीं मानता है. देयर इज नो ग्रे शेड्स इन ट्रूथ. ट्रूथ इज ईदर ब्लैक और वाइट, है ना, या तो है या नहीं है ना. इसमें कोई कलर्स नहीं है. आपकी जो भी परसेप्शन है ना, जो भी आपका जो है, आप किसी भी तरह ट्रूथ को इंटरप्रेट करो, ट्रूथ तो ट्रूथ है. सत्यमेव जयते जो हम कहते हैं ना, इट इज यूनिवर्सल. व्हाई इट इज सो? बिकॉज ट्रूथ इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, है ना. ट्रूथ में सब्जेक्टिविटी नहीं होती है.
ठीक है. सो दैट इज वाई दिस इज सेइंग है ना. अब जैसे ट्रूथ है कि ट्रूथ इज दैट सत्यमेव जयते. यू कैन नॉट से इट इज रॉन्ग. इट इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव. इट इज टाइम टेस्टेड थिंग. और आपकी हर फिलॉसफी जो है, आपके हर रिलीजन की फिलॉसफी है ना. हमारा जो है नेशनल एम्बलम बोलता है सत्यमेव जयते. तो दैट इज व्हाट है ना. द टॉपिक इज अराउंड ट्रूथ. ट्रूथ नोज नो कलर. आज के टाइम पे what we can like some people say कि भैया ट्रूथ को बदला जा सकता है ना. इट इज सेड that थ्रू डेटाज, और इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड है ना. डेटा के थ्रू जो है आप ट्रूथ को बदल दे रहे हो है ना. बट एट द एंड ऑफ द डे आप उस ट्रूथ को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हो. लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप जो है हंगर इंडेक्स में या आप दिखा रहे हो कि भैया हंगर खत्म हो गया, बट जो सड़क में हमें भूखे लोग दिख रहे हैं, जो लोग पॉवर्टी के चलते, हंगर के चलते मर रहे हैं, दैट्स द रियलिटी, दैट्स द ट्रूथ. यू कैन नॉट हाइड इट बिहाइंड योर डेटाज है ना. तो ट्रूथ को कहीं पे भी नहीं छुपाया जा सकता है. सो मेनी रिपोर्ट्स कम आउट एंड दे से दैट इतने लोग पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर आ गए हैं, या इतना क्लाइमेट चेंज में जो है we have improved upon or we have taken actions. but जो अभी चारों तरफ हम देख रहे हैं, erratic weather pattern, कहीं पे बहुत गर्मी है, आप यूरोप चले जाओ, उन्होंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी है. ठीक है, हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल का erratic pattern हो रहा है, you cannot hide this truth है ना. तो डेटा कैन नॉट हाइड द ट्रूथ. सो मेनी एस्पेक्ट्स कैन बी डिस्कस्ड ऑन दिस है ना, कि व्हाई ट्रूथ हैज नो कलर, why people try to color it. ठीक है, कई एस्पेक्ट्स में we will talk about it at length when we will do the detailed discussion. So this is basically about the universality और the fundamentalist nature, और fundamental जो truth जो है वो fundamental है, बिल्कुल बेसिक है ना. इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. it has no color है ना. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ट्रूथ. एंड ट्रूथ जो है वो किसी भी कलर, आपके कलर हियर कैन बी इंटरप्रेटेड एज योर परसेप्शन ऑल्सो है ना. आपके परसेप्शन से ट्रूथ नहीं बदल सकता है. ठीक है, ट्रूथ तो ट्रूथ है. इट इज ब्लैक एंड व्हाइट. इट हैज नो ग्रे शेड्स टू इट. नाउ सेकेंड इज the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting है ना. the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Now this is about non-violence है ना. this is about कि आपको जो है जरूरी नहीं है कि आप जो लड़ाई जो है वो फिजिकली और काइनेटिक वॉर ही हो है ना. वॉर कैन बी वन बाय लॉट ऑफ अदर मीन्स है ना. जरूरी नहीं है कि आपका फिजिकल या काइनेटिक वॉरफेयर ही हो है ना. एनिमी कैन बी सबड्यूड विदाउट फाइटिंग. अब ये जो ऐसे है, इट इज बेसिकली हिंटिंग टूवर्ड्स कि यू कैन विन ओवर योर एनिमी थ्रू योर मेंटल इन्वॉल्वमेंट है ना. आप उनसे जो है कंसेंसस कर सकते हो, आप उनसे डिस्कशंस, डिबेट्स, कंसेंसस है ना, उसके थ्रू आप एनिमी को जीत सकते हो है ना. इट्स नॉट अबाउट यू हैव टू फिजिकली फाइट. इट इज ऑल्सो अबाउट योर आर्ग्यूमेंट्स, योर लॉजिक्स है ना. अदरवाइज ऑल्सो व्हाट वी सी इन लाइफ, लड़ाई कहाँ शुरू होती है, जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है ना. व्हेन यू डू नॉट हैव लॉजिक्स है ना, वहीं आप फिजिकली लड़ने लगते हो. जब आपके पास लॉजिक होता है आप समझाने की कोशिश करते हो. सो इट इज सेइंग दैट कि भैया ये जो आपका जो है एनिमी कैन बी सबड्यूड है ना. यू कैन सबड्यू योर एनिमी, यू कैन विन ओवर योर एनिमी through debates, discussions, because at the end of the day है ना, when you are physically fighting, और तो वो किसी का भी जो है, no one is a victor in a war है ना. कोई भी विक्टर नहीं होता है. कहने को विक्टर है, लेकिन वो भी लूज करता है, और जो लूजर है वो तो लूज करता ही है ना. तो किसी की एक्चुअल में विक्ट्री नहीं होती है. लॉट ऑफ थिंग्स आर लॉस्ट इन द वॉर बाय बोथ द साइड्स है ना. जैसे आज के टाइम पे आप देखो, what we are doing is, like say for example India Pakistan है ना, वी आर ऑलवेज इनटू काइनेटिक वॉरफेयर है ना. आप जो है फिजिकली लड़ रहे हो, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद चाइना, वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज विद चाइना है ना. वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज. अभी भी आपने देखा 2 दिन पहले वांगी हैज द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैज कम टू इंडिया है ना. तो हम डिबेट्स, डिस्कशंस के थ्रू अपने इश्यूज, अपने एनिमी के साथ उसको एंगेज करके वी आर ट्राइंग टू ओवरकम द बाउंड्री चैलेंजेस.
सिमिलरली अब ट्रेड और टैरिफ वॉर हो रही है, ठीक है। अब आप कई जगह जो है नेगोशिएशंस के थ्रू आप टैरिफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और कहीं पे जो है आप ट्रेड वॉर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू कर रहे हो तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स, है ना। यू समटाइम्स बिकम, व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर अ फिजिकल वॉर, यू आर समटाइम्स गेटिंग फ्रेंड्स फॉर एवर, है ना। कुछ बेटर पॉजिटिव आउटकम होता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स कुड बी रिटन ऑन दिस, और आप जो है इट कैन बी इवन एक्सपैंडेड टू द लेवल ऑफ हमारे अंदर की वॉर, है ना। इंडिविजुअल के लेवल पे बात कर सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे बात कर सकते हो, कल्चरल वॉर की बात कर सकते हो, है ना। कई सारे लेवल पे वी कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो वी विल डू इट लेटर. Then thought finds a world and creates one also. So this is about your human nature, है ना। आपका ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर जो है वो उसके दो पहलू हैं, है ना। वो ऑब्जर्व करके चीज़ों से सीखता भी है, और वो अचानक से उसके दिमाग में कोई थॉट आता है ना, और उससे वो दुनिया बदल भी देता है ना। इकिगाई का जो प्रिंसिपल है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, है ना। एंड कहते हैं ना, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. सो इट हैज टू पर्सपेक्टिव्स. थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड, फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो. सो यहाँ पे एक जो है, हम थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड को हम इलैबोरेट कर सकते हैं, एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, है ना। दोनों एंगल पे हम बात कर सकते हैं. अब थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड, है ना. अब जो है human has the habit of inquiry. We are very inquisitive, we are very curious. So when we look around ourselves, तो हमारे दिमाग में कई सारे थॉट आते हैं. ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ठीक है, ये स्टार ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, ये आपका जो है ये बर्ड्स फ्लाई कर रही है, क्या हम वैसे फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग, thought comes into your mind, है ना. thought comes into your mind, and your perception about that thought is based on your reasoning, is based on your understanding, it is based on your learnings of life, है ना. तो आप जो है बाहर से कई सारी चीज़ों को जो है उन्होंने जो है परसेप्शन हमने क्रिएट किया, एंड कई सारी चीज़ें जो है हमने अपने आइडिया से जनरेट की. देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस, है ना. देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. लाइक से फॉर एग्जांपल, और देखो इसमें ये कह रहा है कि थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, है ना. आप जो है थॉट, दो एंगल से हम इसको, एक तो थॉट जो है वो आपको चीज़ें बताता भी है, बाहर क्या हो रहा है उसके यथार्थ को उसको समझने में आपकी मदद करता है, और आपके थॉट से रिवोल्यूशन भी आ जाती है ना. किसी ने सोचा होगा कभी कि हम जो है, इंडिया ने सोचा ग्रीन रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है. इट हैज़ चेंज, इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड. इंडिया इज़ अ फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री राइट नाउ, ठीक है. एक इसका ये भी एंगल हो सकता है, देखो अभी तो हम जस्ट सोच रहे हैं, कुछ भी एंगल हो सकता है, देयर इज नो परफेक्ट ऐसे, है ना. इट कैन ऑल्सो बी कि एवरीवन फील्स कि चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही हैं, है ना. तो वो अपने हिसाब से सोचता है, अपने सोच के हिसाब से अपने चारों तरफ का वर्ल्ड बनाता है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू हैव डॉक्टर कलाम, है ना. उन्होंने मिसाइल्स के बारे में सोचा, है ना. उन्होंने सोचा मिसाइल्स बनाएंगे, वो इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, है ना. उनके दिमाग में थॉट आया, उन्होंने मिसाइल्स बनाई, और उसके अराउंड एक वर्ल्ड बनाया कि इंडिया को हम इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया को सिक्योरिटी में कैसे हम जो है अपर हैंड देंगे, लेवरेज देंगे, इंडिया को कैसे सिक्योर करेंगे. वही एक दूसरा इंसान है, एक टेररिस्ट है ना. वो इन मिसाइल्स को देख रहा है और वो सोच रहा है कि इसको मैं कैसे किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, है ना. कैसे मैं इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ. सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपका परसेप्शन कैसा है, और आप उस परसेप्शन से अपने चारों तरफ वर्ल्ड कैसे बना रहे हो. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स. इट्स नॉट जस्ट ओनली कि ह्यूमन जो है देख के सीखता है और थॉट आने से नई चीज़ डेवलप करता है. सो वी विल डिस्कस इट अगेन. आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन. हम इसको बाद में आराम से जो है काफ़ी एंगल्स के साथ डिस्कस करेंगे. नाउ, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस. सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं, है ना. कहते हैं ना, हार्ड टाइम्स, आग में तप के ही सोना निखरता है ना. सो हार्ड टाइम्स और बिटर एक्सपीरियंसेस, दे हेल्प यू इन लाइफ.
जैसे हमें क्रायोजेनिक इंजन्स मना किया, उसके बाद हमने डिस्कवर किया, हमारे को फूड शॉर्टेज आई, उसके बाद हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया, है ना। हमारे को जो है जब हमारे यहाँ जितने भी इनोवेशंस आप देखो, है ना, ऑपरेशन फ्लड जो है आपका, ठीक है, जब हमारे को डेयरी सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत महसूस हुई, है ना, तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, सो बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, है ना। तो जब आपको बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो उस टाइम आप सबसे अच्छे लेसन्स लर्न करते हो लाइफ के, है ना। व्हाई इट हैपन्स सो, व्हाई बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, व्हाट बिटर एक्सपीरियंसेस टीच अस, है ना। एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि ये जो बिटर एक्सपीरियंसेस है ना, जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे क्या हमेशा ही आप बेस्ट लेसन सीखते हो, है ना, क्या हम सीखते हैं हमेशा? तो यू कैन राइट एंटीथेसिस टू दिस ऑल्सो, इट्स नॉट ऑलवेज द सेम, बिकॉज वॉट वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमने देखा भैया नागासाकी हिरोशिमा हुआ, बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, बट आज भी हम हर टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग न्यूक्लियर इन वॉरफेयर, ठीक है। इतने बिटर एक्सपीरियंसेस हमें रोज हो रहे हैं क्लाइमेट का, बट आर वी लर्निंग फ्रॉम इट, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि आप हमेशा बिटर एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, या is it always that best lessons come through bitter experiences? Sometimes when we are doing, like जैसे आपने क्रिकेट मैच सीखा, खेला, ठीक है, आप जीत गए, तब भी आप एक्सपीरियंस अपना देखते हो कि भैया इस अच्छे जीत में जो है हमने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसको वी कैन फर्दर यूज इट इन द अदर टेस्ट ऑल्सो। तो इट्स नॉट दैट कि हमेशा आप जो है यू कैन कंट्राडिक्ट ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट यू मे कंट्राडिक्ट ऑल्सो, इट्स नॉट दैट बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, एंड इवन समटाइम्स बेस्ट लेसन्स you learn from the experiences or the learnings or the bitter experiences of others also. तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पूरे प्रोसेस से जाकर के ही बेस्ट एक्सपीरियंस लेके आते हो, कई बार आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो, ठीक है। so many things could be written, but of course the main focus would be best lessons are learned through bitter experiences, ठीक है। तो इसके अराउंड है ये लाइफ की लर्निंग्स जो है, हार्डशिप्स जो है ना, वो कैसे आपको जो है आग में तप के कैसे सोना निखरता है, तो दैट इज व्हाट द एसे इज ऑल अबाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, है ना, मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मडी वाटर कब होता है? जब टर्बुलेंस होती है ना, जब टर्बुलेंस होती है तो मडी वाटर होता है। और यहाँ पे एक चीज है, मडी वाटर एंड डर्टी वाटर, देयर आर टू थिंग्स, है ना। मडी वाटर इज बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस, सो इट इज अबाउट व्हेन देयर इज टर्बुलेंस इन लाइफ, है ना, लाइफ में जब उथल पुथल होती है, टर्बुलेंस होती है, सो व्हाट इज द मूल मंत्र? दैट इज पेशेंस। So this essay is about, the philosophy here is about to have patience, you know, when the situation is sometimes so grilling, when sometimes the situation is so disturbing and you are not able to find a way out, है ना, तो हम क्या बोलते हैं? थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, let it happen, है ना, let it also have the patience and let it pass, है ना। जैसे आप देखो कई बार, लाइक आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कई बार आपको इतनी टेंशन होती है, आप रात को सो नहीं पाते हो, ये भी करना है वो भी करना है। अभी जैसे मेन से पहले कई बच्चों की हालत हो रही थी, है ना, दे वर इन अ वेरी पैनिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जीएस भी करना है, ऑप्शनल भी करना है, एसए भी करना है, एथिक्स भी करना है ना, सब कुछ करना है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का हिंदी वीक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड द टाइम इज वेरी वेरी लेस, है ना। फिर क्या होता है यार, सब कुछ बंद करो और आराम से बैठ जाओ, कल सुबह उठ के देखेंगे नए तरीके से काम स्टार्ट होगा। बिकॉज सी we try to control the situation, but it's not always the scenario, because everything, है ना, और every action is determined by two forces, एक internal एक external. Internal is in your hands but external forces are not in your hand. तो जबरदस्ती उसमें उलझ करके उसको और disturbing बनाने की जरूरत नहीं है, let it settle down। हम दिवाली के अराउंड देखते हैं, है ना, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन हो जाता है, सो व्हाट हैपेंस, हम क्या करते हैं कि चलो 5-6 दिन इसको सेटल होने दो,
है ना. तो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट पेशेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, है ना. व्हेन यू हैव टर्बुलेंस इन लाइफ, द की इज पेशेंस, है ना. आप उसमें ज़्यादा जो है और उसको और इंटेंगल मत करो, है ना. कई बार जो है चीज़ें अपने टाइम के साथ ही ठीक होती हैं, है ना. लाइफ में कई सारे आप देखो, कई बार जख्म होता है, आपको कोई चोट लगती है लाइफ में, है ना, चाहे वो इमोशनल चोट हो या फिजिकल चोट हो, वी से इट विल टेक इट्स ओन टाइम, है ना. कई बार जो है आप देखोगे कोई नया स्टार्टअप होता है ना. शुरू में देयर लॉट ऑफ teething problems, lot of problems are there, lot of complications are there. We say कि इसको चलो थोड़ा टाइम दो, चीज़ें सेटल होंगी और रास्ता दिखेगा, है ना. उसी तरह जैसे इंटरनेशनल सिचुएशन है, टर्बुलेंट टाइम है ना. तो व्हाट इज द इंडियाज पर्सपेक्टिव, है ना. वेट एंड वॉच, है ना. बैठ के देखो आराम से, है ना. कई जगह हमारे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट एस्पेक्ट. बट द पॉइंट इज कि एवरीवन is waiting and watching the situation, है ना. उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. टर्बुलेंस है, अब जबरदस्ती उसमें घुस करके सिचुएशन को और खराब मत करो. सो दैट इज व्हाट, है ना. इट इज ऑल अबाउट पेशेंस, है ना. ये ऐसे आपका पेशेंस के ऊपर है. जैसे आप कई बार देखोगे इकोनॉमिक हीटअप हो जाता है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है इट पुल्स आउट मनी एंड लेट इट सेटल डाउन, है ना. उसको सेटल होने देता है. देखो जब टर्बुलेंस होती है तो टर्बुलेंस को अपना टाइम देना चाहिए सेटल होने के लिए, है ना. वी शुड गिव टाइम to the turbulence to settle it down. The only thing that we should avoid is जो फोर्सेस टर्बुलेंस क्रिएट कर रही हैं, है ना, उनको और फ्यूल मत करो, है ना. जो फोर्सेस जिनके चलते टर्बुलेंस हो रहा है उनको और एक्साइट मत करो, उनको और फ्यूल मत करो. जैसे आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल ऑफ कि जब इकोनॉमिक हीटअप हो जाता है तो आरबीआई जो है और फ्यूलिंग की जगह कुछ पैसा बाहर निकाल लेती है ना. मार्केट से पैसा बाहर निकाल लिया, सेटल होने देती. तो दैट इज व्हाट इज, है ना, पेशेंस रखो. और टर्बुलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू डेवलप रेजिलियंस इन लाइफ, है ना. सो दैट इज व्हाट विल टॉक अबाउट इट लेटर. Now the years teach much which the days never know. वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते. So this is the direct topic from our essay probables this year. So this is talking about that learning is a long term process. As I told you कि 2023 में education के ऊपर भी similar topic आया था, है ना, कि जो आप स्कूल से निकलने के बाद सीखते रहते हो, that is what is real education, है ना, वो topic आया था. तो यहाँ पे भी वो similar है कि the years teach much which the days never know, है ना. इट इज अबाउट दैट लाइफ में जो लर्निंग है, लर्निंग जरूरी नहीं है कि आपको एक इंस्टेंस से आ जाए, है ना. लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस एवरी डे, है ना. यू लर्न समथिंग एंड देन यू एनालाइज अपॉन इट. एक लर्निंग होता है, फिर अनलर्निंग होता है, फिर लर्निंग होता है. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना. कई बार क्या होता है, जो आपके लॉजिक्स होते हैं वो किसी एक इंस्टेंस से क्लियर नहीं होते, है ना. योर परसेप्शंस, योर लॉजिक्स, ये जो आपकी जो आइडियोलॉजीज बनती हैं, इट डेवलप्स over a period of time and it is the end product of cumulative, you can say cumulative impact of lot of instances in life. And so life जो है वो एक learning process है. अब जैसे आप for example, है ना, कई बार क्या होता है कि आपको डे टू डे इंसिडेंट्स जो या छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ के, वो आपको एक बिगर पिक्चर नहीं देते. दे डोंट गिव यू अ बिगर पिक्चर, है ना. दे जस्ट गिव यू अ एट द मोमेंट टू द उसी टाइम जो एक आपको एक सिनारियो दिखाते हैं. बट लाइफ में तो एक लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है ना. जैसे से फॉर एग्जांपल एक मेसन घर बनाता है, ठीक है. उसने एक दिन एक दीवार बना दी, ठीक है. वो दीवार बना करके उसको वो लर्निंग, उसमें जो लर्निंग हुई, बट ही डज नॉट नो कि बिगर पिक्चर क्या है. बिगर पिक्चर तो आर्किटेक्ट को पता है कि ये एक एक दीवार से कैसे एक बहुत बड़ा बंगलो बन जाएगा, ठीक है. सो लाइफ जो है ना, यू कैन नॉट से कि एक या दो इंस्टेंसेस से जो है आपका जो है लाइफ जो है लाइफ में आपकी लर्निंग होती है ना. इट इज अबाउट cumulative impact, it is about continuous learning. So it is about learning in life, है ना. and continuous, है ना. लाइफ में आप
को रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली लर्निंग करते जाना है. तो इट्स अबाउट ईयर्स, इट्स नॉट अबाउट योर डेज ऑफ लर्निंग. ऑफ कोर्स सम ऑफ द डेज ऑफ लर्निंग कई बार आपको बहुत इम्पैक्टफुल लर्निंग होती है ना, उसके बेसिस पे आप फिर फर्दर अपना परसेप्शन डेवलप करते हो. बट येस, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव, इट्स अ सम टोटल ऑफ डिफरेंट लर्निंग. उससे आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव, आपका एक वाइडर लॉजिक क्रिएट जो है क्लियर होता है. सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. ठीक है. देन इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन. जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में, है ना. बिकॉज सी लाइफ जो है ना, इट्स अ जर्नी. लाइफ इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, है ना. आज के टाइम पे हमने एक लाइफ को एक डेस्टिनेशन बना लिया. सो वी हैव फिक्स्ड एम्स, वी हैव फिक्स्ड गोल्स दैट आई शुड हैव दिस मच ऑफ लाइक बैंक बैलेंस, और हमारा एक जर्नी है, यहाँ तक हम पहुँच गए, बस भाई हुक और क्रुक, है ना, मुझे यहाँ पहुँचना है. मेरी लाइफ की जर्नी है कि मुझे जो है एक सबसे अमीर आदमी बनना है दुनिया का. ठीक है. तो बट यू शुड लर्न, यू शुड इंजॉय द प्रोसेस. आज के टाइम पे क्या हो गया कि वी आर जस्ट लुकिंग अबाउट और वी आर just looking towards our goal. But if you enjoy this process, because in this journey you learn so many things. But आज के टाइम पे जो है we are only taking it as a destination. अब सिर्फ आप डेस्टिनेशन के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, तो जब तक उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच रहे हो, है ना, आप इतना कुछ है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में. यू हैव सो मेनी एप्स, यू हैव सो मेनी डाउन्स, यू हैव सो मेनी ऑब्जर्वेशंस, यू हैव सो मेनी लर्निंग्स, है ना. लर्निंग्स थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. आप कुछ भी नहीं सीखते हो, है. तो जब तक आप इस जर्नी को आप इंजॉय नहीं करते हो, है ना, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी. बिकॉज अगर आप जर्नी को इंजॉय नहीं करोगे तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना कई बार सस्टेनेबल भी नहीं होता है. बिकॉज आप जर्नी इंजॉय करने के लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ ऑब्जर्वेशन. आप सबको कट शॉर्ट करके बस टू द पॉइंट डेस्टिनेशन देख रहे हो, है ना. जर्नी को इंजॉय करोगे तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे एंड इट विल बी अ सस्टेनेबल थिंग. लाइक जैसे कहते हैं ना यूपीएससी, ऑफ कोर्स getting selected in this exam or seeing your name in the final list, it's the destination of every or it's the aspiration or the destination of every aspirant. But the whole UPSC process, the preparation, it's a very beautiful journey, है ना. कई बार जो होता है आपकी डेस्टिनेशन से ज़्यादा सुंदर आपका जो है आपका जर्नी होता है ना. जो जर्नी है, जो रास्ता है, वो ज़्यादा सुंदर होता है रादर देन डेस्टिनेशन. क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ डेस्टिनेशन होता है, तो आप कई बार वहाँ पहुँचते तो आपको लगता है अच्छा यही था, है ना, इट वॉज दिस ओनली. बट अगर आप पूरे, बिकॉज खाली आप वहाँ तक पहुँचे सिर्फ यही था, बट जो पूरा प्रोसेस का जो इंजॉयमेंट था वो तो आपने मिस कर लिया. तो कई बार ऐसा भी होता है कि डेस्टिनेशन उतना सुंदर नहीं होता जितना जर्नी होता है. और अगर आप लाइफ को एक जर्नी की तरह उसको एक कहते हैं ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, तो अगर आप इस सफ़र को एंजॉय करोगे तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे. सिर्फ डेस्टिनेशन तक मत, खाली डोंट टारगेट द डेस्टिनेशन, अदरवाइज you will be devoid of the lessons, the learnings, the enjoyments of life, है ना. हर मोमेंट को live each day, each moment, आप उसको enjoy करोगे तो आप definitely destination तक पहुंचोगे, है ना. इससे मिलते जुलते many of the topics we have done in the last few years also, this time also, we'll discuss about it later. ठीक है. Now, contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. So this is about contentment in life. This is about संतोष, है ना, contentment. Why this topic is very important? Because आज के टाइम पे आपके पास कितना भी है, इंसान में contentment है ही नहीं. कहते हैं ना, एक बहुत कॉमन सी कहावत है कि हाय तौबा मचाई हुई. एवरीबडी वांट्स दैट मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए. तो इट इज सेइंग दैट कंटेंटमेंट, है ना, इज कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ. वेल्थ का क्या मतलब होता है? वेल्थ का मतलब है कि यू आर नॉट लुकिंग, यू आर वेल्दी, है ना, यू आर नॉट लुकिंग फॉर मच मोर. बट अब जैसे कंटेंटमेंट है मतलब संतोष है. आई हैव इट, ठीक है, मुझे भूख नहीं लग रही है, आई हैव लाइक माई स्टमक इज फुल, मुझे नहीं चाहिए 10 कपड़े खरीद लो, नहीं मेरे पास बहुत है. यू आर कंटेंट इन लाइफ, है ना. सो कंटेंटमेंट मीन्स आई हैव,
है ना, आई हैव, यू आर कंटेंट, दैट्स द रियल वेल्थ. एंड देन लग्जरी जो है ना, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, बिकॉज लग्जरी इज व्हाट यू ऑलवेज सॉट, है ना, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लग्जरी, है ना. आज के टाइम पे क्या है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर लग्जरी. मुझे आई नीड दिस, आई नीड अ बिग बंगलो. अच्छा, एक बड़ा बंगलो बन गया तो इफ आई हैव अ बिग बंगलो इन दिल्ली, आई नीड अ बंगलो इन मुंबई ऑल्सो, देन वो भी हो गया. तो आई नीड अ बिग कार ऑल्सो, आई नीड दिस डिजाइनर वॉच ऑल्सो, आई नीड दिस, आई नीड दैट. ऑल द टाइम यू आर नीडी, है ना, हर टाइम यू आर नीडी. आप एक पुअर पॉवर्टी वाले इंसान की तरह, एक भीख मांगने की तरह, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. सो लग्जरी इज मेकिंग अस, है ना, ऑलवेज नीडी. सो इट इज लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. आपको कभी भी नहीं लगता है कि मेरे पास है. आप, यू आर ऑलवेज हंग्री, है ना, यू आर ऑलवेज हंग्री फॉर आर्टिफिशियल थिंग्स, है ना. लग्जरी जो है वो क्या है, आपका बाहर का एक्सटर्नल जो है, आपका पैसा है, पोजीशन है, नेम फेम है ना, उसके लिए आप हमेशा भूखे रहते हो. सो दैट इज व्हाई इट इज लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, है ना. और जो आपकी वेल्थ है ना, कंटेंटमेंट जो है वो आपकी नेचुरल वेल्थ है. बिकॉज व्हेन यू आर कंटेंट, है ना, when you are content, you are at peace with yourself, you are happy, and the real contentment comes from inside. और आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर लग्जरी, है ना. सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है ना. हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, वो आर्टिफिशियल पॉवर्टी है. कंटेंट लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. कंटेंट लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नोबडी इज एट पीस, है ना. everybody is having some or the other problem. Lot of your mental stress that we are witnessing in the world today, lot of your suicides or lot of your aggression we are seeing in the world today, and a lot of ill methods people are using, है ना. आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए, लग्जरी के लिए करप्शन कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी से छीन रहे हो पैसा, है ना. तो दैट इज व्हाई कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग दैट आई हैव एनफ, बिकॉज दैट विल कीप यू एट पीस. और जब आप पीस में होते हो तो लाइफ बहुत प्रोडक्टिव होती है. अगर आप किसी चीज़ के पीछे बस भाग रहे हो, हर टाइम चाहिए चाहिए चाहिए, है ना, तो आपकी सारी एनर्जी जो है ना, वो बस आप भीख मांगने में लगे. बट व्हेन यू आर कंटेंट, यू कैन थिंक ऑफ योर फ्यूचर, यू कैन बेटर लीड योर लाइफ, है ना. तो वो इंटरनल अंदर से आती है. वील टॉक अबाउट इट, है ना. इसके ऊपर भी हम बाद में आराम से सारे टॉपिक्स के ऊपर वी विल टॉक अबाउट इट. तो जस्ट ये 8 टॉपिक का यू कैन से छोटे छोटे 1-2 लाइन्स में वी हैव ट्राई टू डिस्कस. एंड you will find that कि पिछले कुछ सालों में हमने इन सब टॉपिक्स में मिलते जुलते we have tried to practice also. Like I'll give you some of the examples. जैसे truth knows no color, है ना. तो ट्रूथ का कोई कलर नहीं होता. उसी तरह जो है हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक किया था, दो इट इज नॉट वेरी मच लिंक्ड टू इट, बट समहाउ इट इज लॉ हैज नो कंपैशन एंड जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड विदाउट कंपैशन, है ना. तो आपका जो है ये फैक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, है ना. तो दिस इज अबाउट ट्रूथ हैज नो कलर्स बिकॉज ट्रूथ इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, इट इज बेस्ड ऑन योर यूनिवर्सलिज्म, इट इज बेस्ड ऑन योर फंडामेंटलिज्म, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं. तो उसी तरह से मतलब यू कैन से यूनिवर्सलिज्म के ऊपर हमने एक तरह से किया हुआ है ना. Then the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. तो हमने ये एक लास्ट ईयर टॉपिक किया था. True power is not shown by the ability to wage war, but by the ability to avoid it. है ना, मिलता जुलता यू कैन से थीम है ना, कि नॉन वायलेंस के थ्रू भी जो है, आप जरूरी नहीं कि आप लड़के करो, है ना. नॉन वायलेंस के थ्रू भी, जो अहिंसा के थ्रू भी वॉर जीती जा सकती है, उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है. तो समवट थीम्स जो है, द पॉइंट इज कि इस टाइप के थिंग्स पे हमने जो है प्रैक्टिस की है, तो कई बार जो है इट बिकम्स मच ईजियर, है ना. मिलते जुलते थीम्स आ जाते हैं तो हमारे थोड़ा आसान सा लगता है. एंड देन वी कैन ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ, जैसे
आपका ऐसे है, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, है ना। तो इस बार का जो हमारा ऐसे का पेपर था उसमें वी हैव गिवन दैट विच, जो पेपर 5 था जो ऑल इंडिया मतलब हमारा जो है टेस्ट सीरीज में भी आया था ये, दैट विच डज नॉट किल अस मेक अस स्ट्रॉन्गर, है ना। तो ये डिफिकल्ट टाइम्स के ऊपर ही है ना, कि दैट विच डज नॉट किल अस मेक अस स्ट्रॉन्गर। तो समहाउ डिफिकल्टीज इन लाइफ के ऊपर ये है। उसी तरह से गुड प्रोबेबल्स में इस साल हमने 2025 प्रोबेबल्स में ही हमने जो है एक ऐसे दिया था, गुड डिसीजंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजंस। तो इट इज ऑल्सो अबाउट टफ टाइम्स से जो है आपको बेस्ट कैसे मिलता है। सो दैट वॉज देयर। Then muddy water is best cleared by leaving it alone. तो पेशेंस के ऊपर है। तो पेशेंस के ऊपर तो हमने कई सारे किए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने पेशेंस के ऊपर किया था, adopt the pace of nature, her secret is patience. So it was about patience, it's not about nature, है ना। I am talking about the word patience, है ना। पेशेंस के ऊपर, पेशेंस के थीम पे हमने दूसरे एस्पेक्ट पे किया था, बट पेशेंस पे हमने प्रैक्टिस की थी। Then the years teach much which the days never know. ये तो हमारा डायरेक्ट इस बार आया है, that years teach much which the days never know. Then it is best to see life as a journey not as a destination, है ना। मतलब लाइफ जो है एक जर्नी है, जर्नी कहते हैं ना, चलती रहती है ना, जिंदगी एक सफर है जो इट कीप्स ऑन गोइंग, है ना। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। So that is what similar life का continuity, it goes on, it's a journey. मतलब इस थीम पे भी हमने प्रैक्टिस किया था। Everything that life teaches can be summed up in 3 words, it goes on, है ना। Life is a journey, it goes on. तो similar you can say, कहीं ना कहीं similar themes और aspects पे हमने बात की। दो डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट थीम्स जैसे पेशेंस हो गया, लाइफ इज अ जर्नी हो गया, और ये जो लास्ट टॉपिक है, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। सो कंटेंटमेंट के ऊपर भी इस बार हमने एक टॉपिक जो है प्रैक्टिस किया था, लाइक लव द लाइफ यू लिव, है ना। लव द लाइफ यू लिव, सो यू शुड बी कंटेंट विद द लाइफ, दो इट हैड 2 पार्ट्स, है ना। लव द लाइफ यू लिव, लिव द लाइफ यू लव, सो इट हैड 2 पार्ट्स, बट द फर्स्ट पार्ट, love the life you live, it is talking about contentment. तो मतलब the point is कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं, तो similar or somewhat near close themes we try to do. एंड पिछले 2-4 सालों से आपने देखा है कोई कई सारे टॉपिक्स डायरेक्ट वर्बैटम जो है आए भी हैं। तो टेस्ट सीरीज का यही फायदा होता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो यू फील कॉन्फिडेंट। एंड इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं नहीं आ रहे, इट इज़ अबाउट कि आप सिमिलर पैटर्न या सिमिलर थीम्स पे करके जाते हो तो यू फील कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम। And this exam, I always say, this exam is all about your mental strength, it is about your confidence. ठीक है, so आज पहला पेपर हुआ है, so let us see बाकी पेपर्स भी कैसे आते हैं, and in the meantime we will be doing the detailed discussion of all the 8 topics in near future. कुछ ही दिनों के अंदर we will be coming up with the detailed discussions of all the 8 topics. Thank you everyone.